Good evening, ladies and gentlemen. I'm Padmaja Joshi. The violence in West Bengal's Basirhat started on the 2nd of this month over a Facebook post which many deemed blasphemous. What for days of tension, violence, vehicles being torched, houses being attacked. But for one man, this wasn't enough. BJP MLA from Telangana, T. Raja Singh, decided to stoke the unrest by making an open call to violence on the 7th of July. सभी हिंदू भाई बंधुओं को, बंगाल के टाइगरों को मैं ये कहना चाहूंगा कि जागो, संगठित हो जाओ। मेरे भाइयों, 2002 में जिस प्रकार से गुजरात में जो हिंदुओं को जिन्होंने मारा था, गुजरात में जो हुआ था आप सबको याद है। आज उसी तरह से बंगाल के हिंदुओं को जवाब देने की आवश्यकता है। 3 days on, there has been absolutely no action against this gentleman who incidentally is an MLA. He's an elected representative. Is he then trying to spread communal hatred? So Raja Singh is tonight going to be put in the People's Court. Violence, the death of people, arson, property damage. All of this happened in Basirhat in West Bengal. But even as things were finally returning to normal, a MLA of the BJP got into the act. In fact, on Friday, it almost seemed as he was trying to incite further violence. The bigger question is, why isn't any action being taken against this man who also happens to be a serial offender? जिस प्रकार से कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया, An open call to divide communities. आज बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है. An all-out attempt to stoke further unrest in West Bengal. This is BJP MLA T. Raja Singh from Telangana, brazenly doing his bit to spread communal hatred. Even as riot-hit Basirhat is limping back to normalcy, Raja Singh on Friday attempted to fan the flames, perhaps to reignite the violence. आज बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है. इसकी वजह है वहां की सरकार जिस प्रकार से वहां के जो सांप्रदायिक जो दंगे करते हैं उनको खुली छूट देकर रखी है वहां की सरकार ने. Not just this, he went on to hail the 2002 Gujarat riots. गुजरात में कैसा हिंदुओं को सुरक्षित करके, संगठित करके उन सभी सांप्रदायिक दंगे करने वालों को गुजरात के हिंदुओं ने जो जवाब दिया था, आज उसी तरह से बंगाल के हिंदुओं को जवाब देने की आवश्यकता है. This open rant came just a day ahead of BJP's protests in West Bengal against Mamta's failure to contain the situation. The democratic struggle BJP seems to be talking about is far from what this MLA is calling for. What's worse, it's not the first time he has spewed hatred. In August last year, Raja Singh justified the flogging of Dalits in Una. The communal temperature in West Bengal is already high. And it can't be denied that such calls to violence will only worsen the situation. So what is stopping Telangana from cracking down on this hate-spewing legislator? With Ashish in Hyderabad, Bureau Report, India Today. All right, joining us now on the show is Jaiveer Shergill. He is the spokesperson of the Congress, and in the People's Court tonight is T. Raja Singh, the MLA of the BJP from Telangana. राजा सिंह जी, सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, बासिरहाट में पहले से ही बड़ी प्रॉब्लम्स है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, उसके बीच में आप ये स्टेटमेंट से करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, बशीरहाट में जिस प्रकार से जो 8 दिन से जो दंगे फसाद हो रहे हैं, वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके उनके शॉप्स लूटे जा रहे, उनके मकाने जलाए जा रहे, हिंदुओं को टारगेट करके वहां पर मारा जा रहा है. ये आप भी जानते हैं. और ये बंगाल में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार
हिंदुओं को राजा सिंह जी, टारगेट आप करके मेरे को मारा ये गया, बताइए कि उनके घर गुजरात जलाए का गए, कई उदाहरण बार देके दंगे आप फसाद हुए। संदेश क्या दे रहे हैं? आज ममता बनर्जी को आज ये सोचने की आवश्यकता है कि बंगाल में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं का भी उनको वोट मिला है और उनकी सरकार बनी है। गुजरात के लेकिन हिंदुओं ममता की बनर्जी तरह जी क्या कर रहे हैं? संगठित करके सिर्फ मुसलमानों जवाब को देने सहयोग की कर रहे बात कही हैं, सिर्फ राजा सिंह मुसलमानों जी, को सपोर्ट इससे कर रहे आपका हैं। क्या अरे हिंदू अभिप्राय है? मारा जा रहा है, हिंदुओं के शॉप जलाए जा रहे हैं, 150 मकान, हिंदुओं के 150 मकान जलाए गए हैं, 150 मकानों को भी लूटा गया है। राजा सिंह जी, आखिर ये कौन क्यों नहीं देख रहा, मुझे समझ में नहीं आ सब रहा। देख रहे हैं, हर बार इससे सब देख पहले रहे भी हैं और वो जी, ये भी देख रहे हैं कि इसके बीच में आप गुजरात जी। का उदाहरण दे करके क्या बोलना चाहते हैं? हिंदुओं को संगठित होना चाहिए और गुजरात जैसा जवाब देना चाहिए। देखिए गुजरात में भी हिंदू मार खाया था, आप सबको पता है। गोधरा के बाद में हिंदू ने भी वहां पर मार खाए है, हिंदुओं की भी घर जले है, हिंदू भी वहां पर मारे गए। लेकिन गुजरात में हिंदू इकट्ठा होकर सांप्रदायिक जो दंगे करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, इसलिए आज गुजरात का हिंदू सुरक्षित है। मैंने उन्हीं का उदाहरण दिया है। आज बांग्लादेश के हिंदुओं को मैंने वही उदाहरण दिया है जो गुजरात में जो हिंदू ने जी। किस मुंह तोड़ जवाब की आप बात कर रहे हैं? संगठित होकर के मुंह तोड़ जवाब देने से आपका क्या मतलब है? बंगाल में आज हिंदू सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 3 से 4 दिन तक जहां पर दंगाइयों ने लूटपाट मचाई है, हिंदुओं पर हमला किया है। सॉरी, मैंने बहुत कोशिश की कि आपसे आपका कहने का क्या मतलब था वो पूछने की कोशिश करूं। अब मैं साफ साफ आपको बता दूं, मैं आपको वही ले जा रहा हूं। मामले को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि चीजें शांत हो जाएं, आप इस वक्तव्य से सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। आप हमारा गलत कोई कर रहे भड़काने हैं। का उद्देश्य नहीं है। और प्रदेश के हिंदुओं और मुसलमानों के साथ, सबके साथ जी। और ये राजा आपकी सोच जी, है। और अगर आप अपनी बात पे खड़े हैं आज पद्मा जी के सामने और इनके शो पे दोहरा दीजिए जो आपने मंच पे खड़े होकर कहा था, और उसका मतलब क्या है। बात इतनी सी है 10 सेकंड की कि हिंदू इकट्ठे हों और बदला लें, इसका क्या मतलब है? एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर। अगर आप इतना चुभ रहे हैं जो बंगाल में हो रहा है, तो गृह मंत्रालय में बैठे राजनाथ सिंह जी आपकी पार्टी के मंत्री हैं, आप उनके पास चिट्ठी क्यों नहीं डालते कि कानून की कार्रवाई की जाए? क्या इस देश को यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर किसी का बचाव करना है, बंदूक उठाओ, गोली चलाओ, तो कोर्ट, कानून, निर्णय, पुलिस, गृह मंत्रालय? तो आपके बयान से तो यह साबित होता है आपकी खुद की सरकार एक बेबस सरकार है जो सेंटर पुलिस भेज के वहां की सिचुएशन को काबू नहीं कर सकती। तो आप किसी और से पहले अपने खुद के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे प्रश्न उठा रहे हैं जनाब। वहां की सुरक्षा के लिए, उस दंगे फसाद को रोकने के लिए फोर्स भेजी थी। यही ममता सरकार ने वो फोर्स को वापस भेजी है। तो क्या वो फोर्स विफल रही जो अब आप कह रहे हैं वो बंदूक उठा के गोली चलाएं? राजा जी, बात इतनी है कि सांप्रदायिकता का जहर फैला के आप बंगाल में अपनी पार्टी के ऊपर प्रमोशन लेना चाहते हैं और हमारे सामाजिक भाईचारे को जहर घोल के बांटना चाहते हैं। बात इतनी देश में बहुसंख्यक होना क्या इस देश में पाप है क्या भाई साहब? क्या हिंदू मार खाने के लिए इस देश में पाप है? एक धर्म के लोगों को दूसरे बैगा धारा भी बता देता हूं इंडियन पीनल कोड की। पाप है एक आदमी को दूसरे आदमी के खिलाफ भड़काना और कहना बंदूक उठा, गोली चला और बदला ले। हाँ, ये पाप है। आप मुझे आश्चर्य है, विधायक किसने बनाया आपको जो देश का कानून और संविधान नहीं पता? आत्मरक्षण के लिए भाई साहब, आत्मरक्षण के लिए अगर कोई बंदूक भी उठाता है तो वो कोई गलत नहीं है। आत्मरक्षण के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी समाज की रक्षा के लिए अगर कोई बंदूक भी उठाता है तो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से वो गलत नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बचना जरूरी है, वो उसका परिवार की रक्षा करना जरूरी है। आज ममता बनर्जी की सरकार में कोई हिंदू सुरक्षित नहीं है, आप जान लीजिए। भगत सिंह जी, जहां पर एक तरफ वहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, उल्टा आप कह रहे हैं लोगों को बंदूक उठानी चाहिए। ये आप लोगों को बांटने की, भड़काने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्या करेंगे? ममता बनर्जी हिंदुओं को नहीं बचा रही वहां पर। देखिए, हम भड़काने की राजनीति कभी भी नहीं करते। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर आप पर कोई हमला करता है
तो क्या आप सरकार के सहयोग की प्रतीक्षा करेंगे क्या? जी हाँ, क्योंकि हमें डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां पुलिस लॉ नाम की एक चीज है सर, जंगल राज नहीं है कि हर आदमी आपके कहने पे बंदूक उठा करके निकल पड़ेगा। आप बात क्या कर रहे हैं? आप एक विधायक होते हैं, ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? मैं तो किसी को नहीं कह रहा हूँ बंदूक उठाओ बोलकर। अभी आपने बोला, देखिए अभी आपने बोला आत्मरक्षा के लिए अगर कोई बंदूक उठा ले तो वो गलत बात नहीं है, वो गलत बात है, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारे न्याय में ऐसा नहीं है प्रोविजन आज भी। और आपके बयान में शब्द आत्मरक्षा कहाँ है? आप बयान दे रहे हैं डंके की चोट पे, जैसा 2002 में हिंदू भाईचारे ने किया ऐसा जवाब दीजिए बंगाल में। ये आत्मरक्षा की क्या बात आ गई है? जो वहां पे स्थिति मौजूद है, आपके अपने गृह मंत्री हैं, अगर आप इतने पीड़ित हैं जो कानून की सहायता लीजिए। सत्य तो ये है, सत्य तो ये है कि ये जहर भरा अजगर आपकी सोच को निकल गया है और आप जैसे लोग इस मुल्क को बांटने में लगे हुए हैं। ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया सब ड्रामा है। आप चाहते नहीं बंगाल की स्थिति कभी सुधरे, क्योंकि आप आने वाले चुनाव में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। की वजह से ही आज भारत देश की ये गति है। हम जैसे ये भारत देश का दुर्भाग्य है कि एक विधायक इस बात का फक्र और गर्व मना रहा है कि चलो बंदूक उठाओ और अपने दूसरे भाई को मारो। ये देश का वाकई दुर्भाग्य है राजा जी। ये सचमुच में आपको इतनी छूट दी गई है कि आप विधायक होके इस चैनल पे बैठ के, और पुलिस, मुझे अफसोस कहना पड़ता है, चूड़ियां डाले बैठी है जो आप जैसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं कर रहे। बोलिए, क्या हर बार क्या हिंदू क्या मार खाने के लिए पैदा हुआ है क्या? कौन मार खा रहा है? एक लड़ाई हुई है, कानून अपना रास्ता रहेगा, चाहे जिस धर्म का हो। दोषी कानून उसको सजा देगा। कहां है, किधर है कानून? अरे साहब, अगर बंगाल में कानून होता तो एक भी दंगा फसाद नहीं होता। बंगाल में हिंदू ऐसे सुरक्षित रहेंगे आपके हिसाब से? कौन सुरक्षित रहेगा? और मेरा जंगल राज फैलाएंगे आप? ठीक है, मैं आपसे, बनर्जी की हमेशा से एक ही सोच रही है, अगर कहीं दंगा फसाद होता है तो वो खुद का खुद शांत हो जाए, वहां किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करती है। आप जानते होंगे दूलागढ़ के समय पर भी दंगे फसाद हुए, सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं पर कार्रवाई की गई, हिंदुओं के ऊपर केसेस बुक किए गए। सिंह जी, आपका कहना है आप चाहते हैं कि शांति लौटाए बंगाल में। अगर ये आपका रास्ता है उस शांति को प्राप्त करने का, तो पता नहीं कैसे वो शांति कभी वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लौट पाएगी। आपने अपना पक्ष रखा, आपको लगता है जो आपने कहा है एकदम सही है, बट द मैटर इज एज ऑलवेज इन द पीपल्स कोर्ट। यू हर्ड all sides of the story. Now it's up to you to decide whether this man really should continue in his post, whether he can get away without facing any action. T. Raja Singh, Jaiveer Shergill, thank you very much for having joined us on this show. The other big